خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آنے والے کچھ بے زبان جانور آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں اور کچھ آپ کی بربادی کا کارن بھی بن سکتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے مالی حالات اور گھر کی برکت کو پوری طرح سے بدل دے گی، کیونکہ ہم بتانے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسلامی تعلیمات کے وہ راز جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے بہنوں، اسلامی شکشاؤں، حدیث مبارکہ، مہاپروشوں کی پرانی کتھاؤں اور نیک لوگوں کے انوبھووں کے مطابق 3 جانور ایسے ضرور ہیں جو گھر میں آ کر رہنے لگے تو ان کا گھر میں رہنا بہت زیادہ مبارک اور برکت والا ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں خوب برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے اور خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات، حدیث اور نیک لوگوں کے مشاہدات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا یا زیادہ تعداد میں ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ گھر میں رزق کی کمی، غریبی، برکت کا ختم ہونا اور پریشانیوں کو نیوتا دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس بے حد خاص اور فائدہ مند ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے اور ان 3 جانوروں کا بھی پورا بیان کریں گے جو گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غریبی اور رزق کی تنگی کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس انسان پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی بڑی اور اونچی خوبی ہے کہ پوری کائنات کے مالک کی 2 بڑی صفتیں اسی شبد سے بنی نظر آتی ہے، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بار بار ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، جس کا خوبصورت انواد یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ رحم کرنا خدا کی ایک خوبی ہے۔ خدا تو بہت رحم اور کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہی اونچا درجہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تمام جہان اور تمام جیو جنتوؤں کے لیے کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی پوتر زندگی کا گہرائی سے ادھین کرتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ اور دیگر چیزیں، نرجیو چیزیں یا جاندار چیزیں جیسے پیڑ، پودے، درخت اور بے زبان جانور بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین سوکھی ہو جاتی تھی تو آپ رحمت کی دعا کرتے تھے اور فوراً بارش ہوتی تھی، جس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں پر بھی اتنا ہی زیادہ دیا فرماتے تھے کہ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ سامانیہ حالت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بنانا اور تیر اندازی کی پریکٹس کرنا، آپ نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار ایک صحابی آئے جن کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپیٹے ہوئے کسی پرندے کے ننھے معصوم بچے تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھ کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی بھلائی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کے حالات کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ سیدھے راستے پر چل پڑے۔ یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے
برا व्यवहार और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने के बाद भी आपने उनके हक़ में बद्दुआ नहीं फरमाई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहम की असलियत और उसकी फ़जीलत खूब मालूम थी। आपकी पूरी ज़िंदगी रहम और करम की बेहतरीन मिसालों से भरी हुई है। आपने बार बार इरशाद फरमाया कि जो इंसान लोगों पर दया नहीं करता, अल्लाह उस पर दया नहीं करता। चुनांचे मालूम ये हुआ मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले उन 3 जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहना या ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता और रिज़्क़ की कमी की वजह बनते हैं। दोस्तों और बहनों, नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें निकालेगी और वह आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी कि उन्हें सुनने के बाद जितने भी लोग ज़िंदा होंगे वे सब मर जाएंगे और उसके बाद क़यामत आएगी। चील एक ऐसा बड़ा ताकतवर शिकारी पक्षी है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आसमान का बादशाह बाज या उकाब है, लेकिन चील ऐसा पक्षी है जो बाज का भी शिकार कर लेती है, क्योंकि चील आकार में बाज से काफ़ी बड़ी होती है। आज आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे पेड़ या घर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा तादाद में आकर बैठती है। आपने ज़रूर गौर किया होगा कि कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ज़्यादा ही अशुभ माना जाता है, यानी ये हमारे लिए अच्छा संदेश नहीं है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों और जानकारों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठना अच्छा नहीं होता। यह इस बात का संकेत देता है, इस तरफ इशारा करता है कि इस घर पर जल्द ही बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। यह मुसीबत धन की हानि के रूप में भी हो सकती है और हर चीज़ की कमी या गरीबी की शक्ल में भी। दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों, नंबर 2 मकड़ी है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लगना और बस जाना अशुभ होता है और जो तंगी व परेशानियां आने की वजह बनता है, वह है मकड़ी। वैसे तो लगभग हर घर में मकड़ी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ जमा हो गई है और तेज़ी से जाले बना रही है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन उन जालों को साफ़ करें। याद रखें कि मकड़ी खुद अशुभ नहीं है, बल्कि मकड़ी की वह बरकत वाला जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गारे थौर में जाला बुन दिया था। जब आप हिजरत कर रहे थे और दुश्मनों ने आप पर हमला कर दिया था, उस दौरान आपने एक गुफ़ा में पनाह ली थी। वहाँ मकड़ी ने फ़ौरन जाला बना दिया था ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत ख़तरनाक होती है और मकड़ी बद्दुआ तब देती है जब उसका पूरी तरह से बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी घर के जाले को पूरा ना होने दें। जैसे ही मकड़ी जाला बनाना शुरू करे, फ़ौरन उसे साफ़ कर दें, क्योंकि अगर मकड़ी का जाला पूरा हो जाता है तो वह उसका घर कहलाता है और पूरे बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को गिराने के बराबर है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि यह इंसान और उसके घर वालों को तबाह कर सकती है और उन्हें कंगाल बनाने की ताकत रखती है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर हफ्ते कम से कम एक बार जालों को ज़रूर साफ़ करें, ताकि मकड़ी कभी अपना जाला पूरा ना कर सके। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नंबर 3 लाल चींटी है। तीसरा जानवर जिसका घर में रहना ना सिर्फ अशुभ समझा जाता है, बल्कि बरकत ख़त्म होने और बीमारियों का कारण भी बनता है,
वह लाल चींटी है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि तमाम कीड़े मकोड़े में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल चींटी है। यह इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि हर वक्त यह कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल चींटियां आकर रहने लगे तो फ़ौरन उन्हें हटाने की कोशिश करें। इस्लामी नज़रिए से घर में ज़्यादा लाल चींटियों का होना अशुभ समझा जाता है और ये रिज़्क़ की तंगी का कारण बनता है। वहीं वैज्ञानिकों ने भी एक रिसर्च की है जिसमें ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज़्यादा लाल चींटियों का जमा होना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल चींटी एक ऐसा केमिकल छोड़ती है जो दिल को कमज़ोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। इसलिए अगर घर में चींटियां हैं तो फ़ौरन उन्हें बाहर निकालें। नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं उन 3 जानवरों के बारे में जिनका घर में रहना या घोंसला बनाना मुबारक होता है और धन दौलत में बढ़ोतरी की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा चीज़ों में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बहुत बरकत रखी है, इसलिए जिस घर के पास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है वह घर बहुत मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियाँ आकर आपके घर में छत्ता बनाती है तो यह इस बात की निशानी है और इस बात के तरफ इशारा करती है कि इस घर में रिज़्क़ और बरकत आने का वक्त करीब है। इसीलिए इसे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 2, चिड़िया है। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। चिड़िया का यह नियम होता है कि वह सुबह होते ही अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती है और दुआ करती है कि या अल्लाह, न सिर्फ मुझे रिज़्क़ अता कर बल्कि जिस घर में मैंने घोंसला बनाया और आज की रात गुजारी उस घर में भी रिज़्क़ की तंगी ना आने दें। चिड़िया एक बेजुबान मासूम जानवर है, इसलिए उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। बुजुर्गों और नेक लोगों का कहना है कि यह घर वालों के लिए बहुत खुशी की खबर है और उस घर में रिज़्क़ और दौलत ऐसे आने लगती है जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया की चहचहाट रूह को सुकून देती है। आज के इस मशीनी दौर में यह मासूम परिंदा हमें कम ही देखने को मिलता है। एक ज़माना था जब सुबह की अजान के बाद इनकी चहचहाट ही दिन का ऐलान करती थी और शाम की अजान के साथ ये आखिरी तस्बीह पढ़कर पेड़ों पर जाकर बैठ जाती थी। कुदरत के निज़ाम में हर चीज़ की अपनी अहमियत है और चिड़िया का घर में आना शांति, रहमत और बरकत की निशानी है। हदीस में भी परिंदों के भरोसे को बेहतरीन मिसाल बताया गया है कि वह सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। पुराने वक्त में बुजुर्ग कहते थे कि जिस आंगन में चिड़िया बसेरा करे वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। चिड़िया हमेशा सुरक्षित जगह पर ही घोंसला बनाती है, इसलिए जहाँ परिंदे खुशी से रहते हैं वहाँ सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। जो घर अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह की खास मदद शामिल करती है। इसलिए अगर घर में चिड़िया घोंसला बना ले तो उसे हटाने के बजाय उसकी रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें। नंबर 3, बिल्ली है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली नापाक नहीं है, बल्कि यह तो हमारे घरों में आने जाने वाली है। एक सहाबी ने बिल्ली को बर्तन से पानी पीने दिया और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्ली घर के सदस्यों की तरह है, इसका आना जाना लगा रहता है।
اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بشرطے اس کے منہ پر کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور اللہ کے یہاں بھی بلی کا خاص مقام ہے۔ بلی کی دعا یا بد دعا سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ جس گھر میں بلی رہے، بچے دے یا جس کا وہاں بہت آنا جانا ہے وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والے وقت میں بہت خوشیاں ملنے والی ہے۔ اگر آپ اپنی حیثیت کے حساب سے بلی کو روٹی کا ٹکڑا یا پانی دیتے ہیں تو یہ بہت مبارک کام ہے۔ کئی لوگوں کے حالات بلی کی سیوا کرنے کی وجہ سے بدل گئے اور ان کی غریبی امیری میں بدل گئی۔ بلی خوش ہو کر جب دعا دیتی ہے تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی تنگ حالی اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کر لیتے تھے۔ وہیں ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے سزا دی گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی شکایت بھی سنی تھی۔ اس کا مالک اسے سوکھا رکھتا، بھوکا رکھتا اور کام زیادہ لیتا تھا، جس پر آپ نے مالک کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت دی۔ ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں ہمیشہ ساودھانی برتنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق کی سیوا کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی شکتی دے، ہمیں طاقت دے اور آج کی یہ بات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں جا کر ٹائپ کریں، اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسرے تک شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ان تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔